जय जिनेन्द्र, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं तो आज सोच रहा हूँ कि आपका दर्शन ही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। प्रणाम रमेश भाई। प्रणाम प्रणाम परेश। सो वी ऑल हर्ड, हम सब लोगों ने सुना है नील भाई चातुर्मास के बारे में और इम्पोर्टेंस ऑफ चातुर्मास के बारे में। आज हमारे साथ रमन जी है और भावना जी भी है, बट मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि आज दोपहर को ही मुझे परेश भाई के बारे में मालूम हुआ, एग्जैक्टली इन द आफ्टरनून। हमारे कल्याण मित्र है विनीत भंडारी जी, और उसके बाद मैंने परेश भाई से विनती की। मेरी खास ये इच्छा थी कि आज एक ऐसे हस्ती को हम प्रस्तुत करें जो तब में, जहां तक मुझे मालूम है, नेसेसरी नहीं है कि मैं जो इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ वही बेस्ट है, बट जहां तक मेरी ज्ञान है इस दुनिया में, मुझे नहीं लगता परेश भाई जैसा तब किसी और ने मैंने सुना है किया हो। परेश भाई, आपका बहुत बहुत अनुमोदना। आप सबके लिए इंस्पिरेशन हो। आप काफी लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो चुके हो। आप सब लोग सोचते रहेंगे कि ये कैसे मैं कह पा रहा हूँ। तो अगर 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 आपको चाहिए कि किसी इंडस्ट्री में, इफ यू वांट टू नो सुपरस्टार व्हाट अमिताभ बच्चन इज फॉर सिनेमा, आई थिंक परेश भाई विल बी इक्वल और मोर फॉर द तप. Agar it's a hidden people. I mean, people know about other people, and a lot of people know in their own industry, either in sports or in politics or in this one. But in the fasting world, I have not come across anybody who has done his life dedicated as Mr. Paresh Bhai. चंद बातें मैं परेश भाई के बारे में कहना चाहूंगा, उसके बाद में तब के बारे में कहना चाहूंगा। नील परेश भाई is 58 years old. He's born in 1962, but at the age of 36, he's retired from the active business and he's dedicated his life for religious activity. Apart from that, what he's doing, fasting, which I will read through. I mean, you all people will hope will not fall out of your seat for what he has done in the fasting, which I would like to take you through. But Paresh bhai, apart from doing 50% of his wealth donating for the charity, he's also influenced by him. Divya Ben, who is from the Sindhi community, has inspired and follows the Jain religion. Neil bhai, if you can just play quickly, then I will go to the Paresh bhai's achievements in the Tap world. So this is Paresh bhai, he's here with us. This is about Tap. I am sure Neil bhai has done a better explanation. Neil bhai, next one. 36 years. He's also done the study. Neil bhai, before that, 4 prakrans, 3 bhashyas, 5 garma granths, and of course the main one, Sri Tattvartha Sutra. This is his education side. Next, Neil bhai. So all this is under the guidance. Neil bhai, 1 minute. All this is under the guidance of you all know Acharya Sri Yugbhushan Surishwariji Maharaj, who is also very famously called as Pandit Ji Maharaj. I had an opportunity to meet him personally. I also had an opportunity to meet his elder brother, who was also a Pandit Ji in Ahmedabad way back. Great knowledge, amazing personality, and all his blessings, what Paresh bhai is able to do. Paresh bhai also had a blessings of Sri Kanakratan Bhushan Surishwariji Maharaj, of course Acharya, and Acharya Sri Himanshu Surishwariji Maharaj, who is also a great Acharya, who is dedicated his life as an example of fasting. Next, Neil bhai. So I will start with the order, which as it goes up, you will be surprised. इन्होंने जीवन में 3 अठाई किए, 8 उपवास, 9 उपवास किए 2 बार, 11 उपवास किया 1 बार, 15 उपवास किया 1 बार, 16 उपवास किया 2 बार, 30 उपवास मार्च कमन किया है 3 बार. आई मीन ये इनिशियली है. नेक्स्ट 3 स्लाइड्स और है. मार्च कमन किया 3 बार और 1 मार्च कमन इन्होंने 24 उपवास के साथ मार्च कमन किया. परेश भाई, कहीं भी मेरी गलती हो, चूक हो तो मैं माफी चाहता हूं, बिकॉज ये सब हमने लास्ट मोमेंट में प्रिपेयर किया है. 45 उपवास किया है 1 बार. नो प्रॉब्लम. हाँ, 51 उपवास किया 1 बार, 68 उपवास किया 1 बार,
72 उपवास किया एक बार। नील भाई नेक्स्ट। 108 उपवास किया एक बार। सीधी तप किया एक, सैनिक तप किया एक, 3 वर्षीय तप किया है। और 3 वर्षीय तप में खासियत इनकी यह है कि 1 वर्षीय तप तो जो वर्षीय तप सब लोग करते हैं, 1 वर्षीय तप इन्होंने छठ से किया है और 1 वर्षीय तप अठम से किया है और पारने के टाइम आंबिल से किया है। इसमें शायद मेरी थोड़ी सी गलती हो, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, बट परेश भाई जब कहेंगे तो वो इसमें सुधार कर देंगे। एक शत्रुंजय तप किया है। अब सबसे बड़ी तपस्या आती है, एक बार इन्होंने 121 दिन का उपवास किया है। खाली उपवास ही नहीं, उस उपवास में इन्होंने विधि पूर्वक उद्यान किया है। आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल उद्यान करना मुश्किल है, उसमें आंबिल से उद्यान करना मुश्किल है, उसमें उपवास से उद्यान करना और उसमें विधि पूर्वक खड़े खड़े सब क्रिया करना। उपवास में उद्यान में बहुत बड़ी क्रिया होती है। आई मीन आई जस्ट, जब मैं कह रहा हूं तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सब इस जीवन काल में किसी ने किया है। और आप सबसे ज्यादा तपस्या आप देखिए, 24 दिन कल्याणक तप चल रहा है जिसमें 12 तीर्थंकर तक परिपूर्ण किया है। पहला तीर्थंकर का 6 उपवास, उसके बाद में 12 उन्होंने 12 उपवास किया है। 12वीं बार इन्होंने मास क्षमन किया है। उसी वर्ड के लिए मैं ढूंढ रहा था, थैंक यू परेश भाई। 12वीं बार उन्होंने मास क्षमन किया, 12 मास क्षमन। और 12 मास क्षमन में 7 मास क्षमन उन्होंने बैक टू बैक किया है। उसमें कोई विगल नहीं आई उनको। एक मास क्षमन, फिर एक आंबिल से पारना किया, फिर दूसरी मास क्षमन, फिर आंबिल से पारना किया, फिर तीसरी मास क्षमन, चौथी, पांचवी, छठी, 7वीं मास क्षमन। 7 मास क्षमन इन्होंने एक एक उपवास करके किया है। और अभी आज इन्होंने इतना रश में, इनके लिए तो एक सेशन भी कम था बिकॉज इनका एक्सपीरियंस हम सब लोग आज सुनेंगे। बट आज मैंने इतना रश में इसलिए रखा कि इनका संडे से मास क्षमन करने की इच्छा है 13वीं, और इनको 22 मास क्षमन पूरा करना है। और इनको एक 24 तीर्थंकर की एक तप होती है जो मुझे इतना डिटेल में नहीं मालूम है, बट उसमें इन्होंने, गुरु महाराज ने कहा कि वो उसमें से सबसे टफ मास शमन से होता है। तो उन्होंने कहा कि आपके तबियत के कारण आप पहले मास शमन से वो शुरू कर दीजिए, बाकी कष्ट का जो है 22 मास शमन वो शुरू कर लीजिए, जो टफ का है वो आप बाद में कर लेना। परेश भाई, मैं ये कह नहीं सकता हूं कि ये आपने एक जीवन में कैसा किया है, हम तो सोच भी नहीं सकते हैं। हमें उपवास, ये तपस्या तो छोड़िए, हमसे 24 भी होना बहुत मुश्किल है। कभी हमारे घर में से बोलते हैं कि आज 14 है और 8 में, तो हम बोलते हैं कि आज कितना मुश्किल है, कल से चुमासा शुरू हो रहा है। हम सब लोग जो सुन रहे हैं उनके लिए चुमासा तो एक बहुत कठिन है कि ये सब्जी खाने को नहीं मिलेगी, कल से कोतमीर नहीं मिलेगा, कल से बाहर जाने को नहीं मिलेगा, वही मुश्किल है हमारे लिए। और आप अब पता नहीं कितने मास शमन, कितने उपवास, क्या मेरे के तो गिनती से बाहर है। और मैं ये सब, मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन किया कि ये सब इन्होंने 36 साल की उम्र के बाद में किया। ही इज 58, सो ऑल दिस ही हैज डन इन लास्ट 22 years. So इनके लाइफ स्पैन 58 है, बट ही इज मैनेज्ड टू डू दिस इन 22 years. So मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन किया कि 22 दिन का लगभग 8000 दिन होते हैं 22 साल के, और 22 साल के 8000 दिन में इन्होंने करीब 2500 दिन के ऊपर ही इज बीन ऑन फास्टिंग, मीन्स more than 1 day or little more than 1 day in 3.5 days. 3.5 दिन में इन्होंने एक उपवास किया है लास्ट 22 साल से। परेश भाई, बहुत बहुत अनुमोदना, आपकी आशीर्वाद हमारे पर भी हो, हम भी ऐसी तपस्या कर पाए, यही हम साथ, आपका एक्सपीरियंस इस प्लेटफॉर्म पे। परेश भाई प्लीज शेयर विद अस। सभी को मेरा प्रणाम। रमेश भाई, अगर मुझे इजाजत हो तो मैं थोड़ा अपनी तरह से ही चलना चाहूंगा। जरूर। सबसे पहली बात है कि आप जो लिस्ट अभी मेरी तपस्या का गिनवा रहे थे और सबको अचरज हो रहा है, मुझे आप लोगों से ज्यादा सरप्राइज हो रहा है क्योंकि इतनी डेटा एनालिसिस मैंने कभी की नहीं है। इतने मेरे उपवास हो चुके मुझे भी मालूम नहीं है।
परेश भाई, मैं इसमें एक माफी चाहता हूँ इंटरफेरेंस के लिए। जी सब 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 को मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि परेश भाई को अनफॉर्चुनेटली 2 हार्ट अटैक आ चुके हैं, एक 2011 में और एक 2017 में, और उनके दोनों हार्ट अटैक के समय उनका एंजियोप्लास्टी किया हुआ है। इसके उपरांत, हार्ट अटैक के उपरांत उन्होंने इस तपस्या का जारी रखा, उनका मनोबल कम नहीं हुआ। आप सोचिए, घर वाले, इनके पर्सनल कैसा इनको अनुमति दिया मुझे नहीं मालूम, बट इसके अलावा इन्होंने इसका कंटिन्यू रखा। उसके बाद जब उन्होंने 121 उपवास कंटिन्यूस किए, मुझे तो 121 कितना महीना होता है वो भी सोच नहीं सकता हूँ। उसके बाद इनकी तबीयत बहुत ही he went through a very tough time physically. His blood stopped circulating. A lot of doctors advised him, but he recovered. गुरुजी का, पंडित जी मारसा का इनको कहा कि आप पहले रिकवर हो जाओ, तब तक आपको कोई पचकान करने का अनुमति नहीं है. But still he recovered and he again got up and he again started doing tapasya. Paresh bhai, sorry for this interference because I have to mention that he also went through the health issues. Yeah, never mind. सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहूंगा कि किसी भी जीव को तप करने की सच्ची प्रेरणा तो तब मिलती है जब उसको पाप का डर लगना चालू हो जाता है. जो बनाए हुए बांधे हुए कर्म है वो जो सजा देंगे, उसकी जब तक समझ नहीं मिल जाती है तब तक कोई भी जीव इस दिशा में पुरुषार्थ नहीं करता है. अब ये समझ देने वाले तो गुरु होते हैं, और हमारे जैन धर्म के गुरु, मतलब अगर आचार्य अगर कोई है, आचार्य की पदवी कब दी जाती है उसके बारे में सबसे पहले थोड़ा ब्रीफ में बताना चाहूंगा. किसी को भी अगर आइडिया हो तो मुझे बता सकते हैं कि आचार्य की जो पदवी है उसको हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, सांसारिक एकेडमिक्स की लैंग्वेज में अगर ट्रांसलेट करना है तो इक्विवेलेंट कौन सी डिग्री आप रखेंगे? किसी को कोई अंदाजा है? रमेश भाई? हमारे इसमें तो पीएचडी या डबल पीएचडी कहते हैं, बस उसके ऊपर तो है नहीं कुछ. जी रमेश भाई, अभी जब आप पीएचडी का नाम लिया है तो यू आर इन अ राइट डायरेक्शन, बट इफ somebody becomes PhD in different 18 subjects, 18 subjects, that is the study required for becoming an acharya of Jain religion. और PhD के जो भी subjects होते हैं, whichever subject they may prefer and write the thesis and all, it is far more easy than 45 आगम्स. और उन 45 आगमों का बराबर स्वाध्याय वगैरह करके उनके एक्सपर्ट बनते हैं, तब जाके उनको आचार्य की पदवी मिलती है. ये तो हुई ज्ञान की बात, साथ में दूसरे बहुत सारे गुण भी देखे जाते हैं. तो मेरा ऐसा सौभाग्य रहा कि मुझे लगभग 17 आचार्य भगवंतों से मेरा बहुत क्लोज परिचय है. उनकी मेरे पे बहुत असीम कृपा है. एंड अनबिलीवेबली मैं जो कर रहा हूं, मुझे ऐसे लगता है कि दिस इज नॉट द पावर ऑफ फिजिकल एनर्जी और फिजिकल स्ट्रेंथ. व्हाट यू नीड इज वेरी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन. बिफोर दैट यू शुड हैव अ क्लियर फोकस, और फोकस की क्लैरिटी गुरु देते हैं, डिटर्मिनेशन हमारे अंदर वही प्लांट करते हैं, हमारे पुरुषार्थ को वही जगाते हैं. और कहीं विघ्न आता है तो उसको दूर करने के लिए उनके वास्तक्षेप के द्वारा हमको आशीर्वाद मिलता है, एंड वी मार्च अहेड, एंड अल्टीमेटली वी आर विक्टोरियस ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ देम. बात यह है कि अगर महावीर स्वामी परमात्मा के पिछले थर्ड लास्ट भाव में अगर हम जाते हैं कि जब वो नंदन राजा थे, 25 लाख वर्ष की आयु थी, 24 लाख वर्ष पूर्ण करने के बाद उन्होंने दीक्षा ली और नंदन मुनि बने. जिस दिन उन्होंने दीक्षा ली उसी दिन से काल धर्म हुआ, तब तक 1 लाख वर्ष में मास खमन के बहाने मास खमन किया. द अकाउंट इज लाइक दिस कि उन्होंने 1 लाख वर्ष में 11,65,856
मासिक शमन किए, और तब भी इतने कर्म उनके आत्मा पे बाकी रहे कि जो तीर्थंकर के भाव में हम सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा उपसर्ग महावीर स्वामी परमात्मा के जीवन में उन्हें आए हैं, अन्य तीर्थंकरों को इतने उपसर्ग नहीं आए थे। तो आप ये सोच सकते हैं कि महावीर स्वामी परमात्मा को जितने उपसर्ग आए हैं, ये कर्मा सत्ता मेरे लिए भी वही है, आपके लिए भी वही है। वो तीर्थंकर की अगर परवाह नहीं करते हैं सजा देने में, तो हम कौन है? और 11,65,000 मासिक शमन के सामने मैं तो कहाँ मेरू शिखर और कहाँ एक छोटा सा कंकर। ऐसी परिस्थिति है जो मुझे ऐसे लगता है कि मेरा जो पूर्व का 36 साल का आयुष्य था, या मेरी जो उम्र चली गई, आई थिंक आई एम वेस्टेड, इट हैज गॉन इन वेन, यू कैन से। दूसरी एक बात ये बताना चाहूंगा कि हम सब जैन हैं, और जैन की पॉपुलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड is believed to be about 55 lakhs against the total population of about 7.3 billion people. यानी 730 करोड़ में सिर्फ 55 लाख जैन है। उसमें से अगर हम थोड़ा प्योरिफिकेशन करके कैटेगराइज करते चले तो 4.5 लाख या 5 लाख के आसपास रफली 12 व्रतधारी श्रावक है। साधु साध्वी की सभी चारों फिरकाओं का मिला के 15 या 16 हजार है, और सभी फिरकों के मिला के आचार्य सिर्फ 225 हैं। तो अभी आप ये सोचिए, 730 करोड़ की पॉपुलेशन के सामने 225 आचार्य। व्हाट इज द परसेंटेज? आई हैव नेवर कैलकुलेटेड, बट आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू हैव कॉन्टेक्ट विद एटलीस्ट 50-60 आचार्य, आउट ऑफ विच with 17 I have got very intimate relation where I can go and cry and tell them that these are my difficulties, I am stuck and how can I go forward. तो मुझे ये सारी तपस्या करते समय ऐसे लगा जैसे I am chosen and I am blessed by all of them. जब भी मेरी सारी तपस्या योगभूषण सूरी जी महाराज साहब की निश्रा में हो रही है, और ही इज तो नॉलेज ऑफ आई डोंट नो उनके नॉलेज के बारे में क्या बोले, ओशन ऑफ नॉलेज, इन देयर इज नो सब्जेक्ट वेयर ही इज नॉट मास्टर। यू ब्रिंग द टॉपिक एंड ही इज द मास्टर ऑफ इट। तो ये जब हम रियलाइज करें कि जैन धर्म हमको कितने जन्मों की, ऐसे कहा जाता है कि अनंत जन्मों के पुण्य जब आप जाकर के एनकेश करो तो पंचेंद्रिय पना मिलता है। उसमें भी एडिशनल पुण्य जब देते हो तो मनुष्य बनते हो, और एडिशनल जब देते हो तो जैन धर्म मिलता है, और फर्दर एडिशनल जब आप देते हो आपका पुण्य तो आर्य भूमि, यानी जहां शाश्वत गिरिराज शत्रुंजय है उसके आसपास के एरिया में कि यू कैन इजीली जाकर के आप वहां की यात्रा कर सकते हैं। पर ये शत्रुंजय की इंपॉर्टेंस दिखाते हुए शास्त्रों में बताया है कि शिवंदर परमात्मा अपनी देशना में गिरिराज की महिमा जो सुनाते हैं, वो सुन के वहां के श्रावक श्राविका इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि वो देवताओं को विनती करते हैं कि हमको ये इसकी यात्रा करने लेके जाइए। तो देवता वहां पे गिरिराज की हुबहू नकल बनाते हैं और वहां के जीव वो यात्रा करते हैं। अब हमें ये गिरिराज तो विद इन इंडिया अगर हम देखें तो फ्यू 100 किलोमीटर्स अवे हैं, उस जिसकी स्पर्शना मात्र से हमारे शास्त्र में एक दुआ है जिसमें कहते हैं कि एक एक डगलू भरे शत्रुंजय समूझे, घर से निकलो पहले कदम पे आपके अनंत भवों के कर्मों की निर्जरा होती है। लेकिन ये जो इक्वेशन है उसके लिए साथ में कुछ डिमांड रखी गई है कि आपको इतनी आस्था होनी चाहिए, आस्था से आपके ऐसे भाव बनेंगे, you should be sure that this is going to happen with you. You should have unshakable faith. ये faith का होना बहुत जरूरी है। अब बाकी आप कोई प्रश्न पूछना चाहे या कुछ I am not a very good orator, so you can ask something and I can reply with my experiences.
Lot of questions, Paresh bhai. The viewers have told to share the slides which you have done again, which we're going to do. बहुत बहुत अनुमोदना परेश भाई, हम कह नहीं सकते शब्दों में. Not an orator, you have done extremely good explanation. आपने बहुत ही अच्छा कहा है, और आपने एक स्टैटिस्टिक जो बनाया है वो भी मेरी इच्छा है कि कितने गुरु महाराज है, उसमें कितने साध्वी साधु है, और उसमें कितने आचार्य है. शायद मैं जब भी बनाऊंगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं फर्स्ट शेयर करूंगा उनके सब नाम के साथ. बट बहुत ही अच्छा लगा, I'm always available at your disposal. बहुत ही अच्छा लगा जब आपने कहा कि मुझे 50 से 50 to 60 आचार्य महाशय से संपर्क में है, and 17 of them are very very close. Paresh bhai, my question to you is, till the age of 36 you lead a regular life, more or less, when you were little spiritual. Yes. And last 22 years it's been totally spiritual, means you have spent almost one day in 3.5 days, if I can say, not in 4 days, as fasting. What difference do you see in your life before and after? आपको क्या फर्क लगता है उस 36 years में और इस 22 साल? Uncomparable difference. I mean, कैसे मैं आपको कौन से वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बट ऐसे लगता है कि डिस्पाइट लिविंग इन दिस वर्ल्ड, यू आर एक्चुअली इन अ डिफरेंट वर्ल्ड. आप जब महात्माओं के साथ, और खास करके मैंने चातुर्मास जो पालिता नाम है 121 उपवास किए, तो मैं 120 डेज औषध में था. महात्माओं के सानिध्य में रहने का एक अवसर प्राप्त हुआ, और उनका जीवन जब देखा तो मुझे लगा कि इनके पास जो प्रसन्नता है, मेरे जीवन में अगर कोई सबसे बड़ा फर्क आया हो तो ये एक जो प्लेजर होता है अंदर से, जो एक अनुभूति है, कांट बी एक्सप्लेन्ड इन वर्ड्स. मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ रमेश जी. आपने जैगरी और शुगर दोनों टेस्ट किए होंगे. यस, आई एम श्योर. तो दोनों स्वीट है, लेकिन दोनों के स्वीट में क्या डिफरेंस है, आप समझा सकते हैं? Yeah, I mean, sugar you always like it more than jaggery, because I am not asking the quantification. I am asking the difference. Well, in the taste. Anyway, please go ahead. रवीश भाई, इसको हमारे शास्त्र में बताया है कि जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, सिर्फ जो उसका संवेदन होता है, जिसका हमें एक्सपीरियंस होता है, यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स, उसको बोलते हैं अनअभिलाप्य. और अनअभिलाप्य पदार्थों की जो दुनिया है वो अभिलाप्य पदार्थों से बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है. यानी अनंत ही चीज ऐसी है कि जो अनअभिलाप्य की कैटेगरी में आती है, उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते. बट जो प्लेजर मैं आपको सिर्फ यही बोलूंगा, फॉरगेट अबाउट योर कैपेसिटीज. आई एम टू श्योर कि आपके अंदर भी मासिक श्रवण करने की एक शक्ति पड़ी है, उसको एक्सप्लोर कीजिए. एंड टू स्टार्ट विद आप एक अट्ठम कीजिए, और अट्ठम करेंगे ना तो जो मुझे अनुभूति हुई है उसका अनुभव आपको अंश से तो जरूर होगा. And then you will be able to understand, still you won't be able to explain that what is the difference. Spiritual life का ये बहुत बड़ा एक विस्मय कारक चीज आप बोल सकते हैं कि you cannot explain, but it is really wonderful. Wonderful is not the correct word to define, but I am expressing my inability to answer you that how and what quantity of pleasure I get out of it. I got it. So it's more of a feeling which you can't explain in words, कि आप शब्दों में नहीं कह सकते हैं. मुझे ऐसा एक आशीर्वाद दीजिए कि मेरे जीवन में एक मास श्रवण करने की मेरी बहुत इच्छा है, तो आपका एक आशीर्वाद दीजिए. नहीं, आशीर्वाद नहीं, आई वेलकम यू टू कम एट माय होम. हम दोनों साथ में कर लेंगे, मैं आपको करवा दूंगा. मेरा दूसरा प्रश्न है आपको, व्हाट मार्गदर्शन वुड यू लाइक टू गिव इट टू अस? आप हमको कैसे मार्गदर्शन दें? कम अगेन. What is the margadarshan? What is the way you will show to us? Basically, we have to understand. हमारे देखो, उपवास करने से कर्म की निर्जरा होती है, हम सब जानते हैं, ठीक है. लेकिन निर्जरा क्यों होती है? Any idea? जीवों की हिंसा ना हो. राइट. तो जितनी आपके बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी ऑलरेडी स्टोर्ड है,
उतनी यूटिलाइज करके आप जितने जीवों को जीवित दान दे सकते हो, अभय दान दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक दिन की उपवास की शक्ति हो, तो वो एक दिन की शक्ति आप यूटिलाइज नहीं करें तो आपको वीर्यांतराय कर्म का बंद होता है, यानी अगले भवों में वीक बॉडी मिले ऐसी संभावनाएं बढ़ जाती है। और यदि आप उस एनर्जी को यूज करते हो तो इतने जीवों को शाता देने के कारण आपको इतना पुण्य बंद होता है कि आपको हो सकता है कि अभी हमारा छठा संग्रहण है, आपको शायद पांचवा या सेकंड या फर्स्ट संग्रहण मिल जाता है, और संग्रहण के साथ मन की शक्तियां जुड़ी हुई है। जितना मजबूत संग्रहण उतना ज्यादा मन का मजबूत होना, यानी कि विल पावर। तो ये किसी भी जीव को अगर आप जब जीवित दान देते हैं तो आप उनके द्रव्य प्राणों की रक्षा करते हैं, और उस प्रोसेस में आपके भाव प्राणों की रक्षा होती है। आई होप सभी को मालूम होगा द्रव्य प्राण और भाव प्राण क्या होते हैं, और डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन इट इन ब्रीफ? Yeah, if you can. I mean, I'm sure a lot of people would like to know. How can you Please go motivate ahead. the youth? This is the last question. How can you Yeah. motivate the youth to follow the principles of तप? आप कैसे ये नई पीढ़ी को चातुर्मास में और इस तप में जुड़ने के लिए इंस्पिरेशन कर सकें? रमेश भाई, जो यंग जनरेशन है ना, दे आर फार बेटर देन अस, बिकॉज यू नो दे कम आउट विथ क्वेश्चंस, एंड व्हेन यू गिव देम साइंटिफिक आंसर्स एंड appropriate satisfaction, वो अपने आप जुड़ जाते हैं। एंड फॉर्चुनेटली हमारा जैन रिलीजन जो है इज मोर साइंटिफिक देन द साइंस ऑफ टुडे, सो देयर इज ऑलवेज अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन अवेलेबल। उनके जो भी सवाल होंगे उनको आप अगर साइंटिफिकली विद इन द फ्रेम ऑफ रिलीजन जवाब दे देते हैं तो दे आर डेफिनेटली गोइंग टू ज्वाइन विद अस। Thank you so much. Neil bhai, all yours. Thank you for taking so much of time. Neil bhai, your questions, then you can go to other panelists. Thank you so much. Paresh uncle, I want to ask one question. Yes. अगर कोई व्यक्ति तप करता है तो हाँ जी। उसको कितना तप करना चाहिए, यानी कि सामर्थ्य और असामर्थ्य का विचार किस प्रकार करना चाहिए तप करते समय? भगवान ने बहुत क्लियर कट आज्ञा इसके बारे में दी है कि यथाशक्ति करना चाहिए, और शक्ति कितनी है उसको अगर आप मेजर करना चाहते हैं तो आपकी रुचि संसार के जिस सब्जेक्ट में या किसी हॉबी में, तो एक हॉबी को परस्यू करने के लिए, या आप फॉर एग्जांपल अगर कोई एक मूवी देखने जा रहे हैं और उसके टिकट परचेस करने के लिए लंबी लाइन अगर लगी हुई है, और 1 घंटा आप कहीं किसी के लिए, या कहीं समझो बिजनेस करने गए और वहां पे ऊपर कड़ी धूप है, पेट में भूख लगी है, बट वो सबको अवॉइड करके आप 2-3 घंटा अगर स्ट्रगल कर लेते हो, तो वो जो आपकी रुचि के अनुसार आपने जो स्ट्रगल किया वो आपकी एक्चुअल शक्ति है। जो हम धर्म की बात आती है तो बोलते हैं कि नहीं, मेरे शरीर में शक्ति नहीं है, मुझे पैर दुखने लगते हैं, मेरा सर दुखने लगता है, तपस्या नहीं होती है, स्थिरता नहीं हो पाती है, मुझे इंटरेस्ट नहीं आता है। अभी हम कोई भी बच्चा जब कॉलेज से बाहर निकलता है उसके पहले उसके माइंड में डेफिनेटली फोकस होता है कि मुझे पैसे कमाना है और करोड़पति बनना है। लेकिन रिलीजन के मामले में यह होता है कि उसको क्लियर फोकस भी नहीं है, और अगर फोकस दे भी दे तो वो अपनी असामर्थ्य दिखा के भाग जाता है। जबकि और जितनी आप शक्तियां अनयूटिलाइज रखते हो उतने आपको अंतराय कर्म बनते ही जाते हैं। सिंपल थिंग, अगर आप देरासर में गए और भगवान के सामने 3 खमासंडा देना है, वो नहीं देंगे या खड़े खड़े ही दे देंगे, तो आपको शरीर की ताकत जो है उसमें कमी हो जाए, ऐसा कर्म वहां पे बनता ही है। सो सामर्थ्य की जो यथाशक्ति की डेफिनेशन है यही है कि आपकी जो इंटरेस्ट है उसमें आप लगातार, अगर आप बैक टू बैक कोई मूवी देखते हो 3 घंटे के बाद और 2 घंटे की एक छोटी मूवी, तो वो आपकी 5 आवर्स की कंसंट्रेशन की कैपेसिटी है, और वो अगर ज्ञान पढ़ने में नहीं लगाते हो तो ये आपका असामर्थ्य नहीं है, ये आपका अविवेक भी है और आपका एस्केपिज्म भी है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सुंदर तरीके से समझाया
कि हमें तप यथाशक्ति करना चाहिए, और हमारी शक्ति का अगर हम सही इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमें वीर्यांतराय कर्म का बंध होता है, और नेक्स्ट भव में हमें जो अभी शक्ति मिली है उससे भी कम ही शक्ति मिलेगी। तो बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन आपने इस तरीके से भी दिया कि जिस विषय के अंदर हमें रुचि होती है उस विषय में किस तरह हम हमारा दुख वगैरह सब कुछ भूल जाते हैं और हमारा सामर्थ्य हमें दिखता है। उसी प्रकार ये तप के अंदर हमें रुचि लानी चाहिए। मैं इतना समझ पा रहा हूँ फिलहाल कि हमें कर्म निर्जरा के लिए रुचि डेवलप करनी चाहिए, और ये रुचि के कारण ही हमारा सामर्थ्य उस डायरेक्शन में और आगे बढ़ेगा। एम आई राइट परेश भाई? एब्सोल्युटली। मैंने जब ये तपस्या करना शुरू किया था, मेरे लिए पहली 28 करना जैसे कोई एवरेस्ट की क्लाइंबिंग करने जैसा मुझे भी लगा था। बट मुझे थोड़ा तभी ऐसा था कि nobody can defeat me. I was having my own egos at the age of 16 years. I was doing gymming and swimming and what not. मुझे लगा कि ऐसे कैसे कि 8 दिन भूखा रहने में क्या हो जाएगा। मेरा वो उपवास नहीं था, एक्चुअली वो भूखा रहने की एक मेरी एग्जाम थी, समझ लीजिए। मुझे मालूम नहीं था कि तब क्यों किया जाता है, बट कोई कर रहा था, उसके साथ जुड़ के कर लिया। बट जैसे जैसे मैं अपनी रुचि बनाता गया, मुझे मेरे अंदर की स्ट्रेंथ एक्सप्लोर करने का मौका मिला। ये 7 मासिक श्रवण बैक टू बैक करना मैंने कभी मेरे ड्रीम में भी नहीं सोचा था। जब किया उसके 1 महीने पहले मुझे मालूम नहीं था कि ये कैपेसिटी मेरे अंदर है। तो ये कैपेसिटी मेरे शरीर की नहीं है, ये आत्मा की शक्ति है, जो हम आत्मा की शक्ति को उजागर करके देते हैं हमारे गुरु। पुरुषार्थ करने की प्रेरणा भी वही देते हैं, अटकते हैं तो धक्का भी वही लगाते हैं, लेकिन डेफिनेटली एक्सप्लोर तो हमें ही करना है। बिल्कुल बिल्कुल जी। सो यानी हमें हमारी शक्ति एक्सप्लोर करने के लिए छोटे तप से शुरुआत करनी चाहिए, और वो कंसिस्टेंटली मेंटेन करते करते उसमें नहीं, मैंने ऐसे नहीं कहा है। आप डायरेक्ट बड़ा आप एक लॉन्ग जंप लगाओगे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सही बात है। दिस इज योर एस्केपिज्म। आप फेस से तो काफी हेल्दी लगते हो, तो छोटी तपस्या की बात करना आपको शोभा नहीं देता। यस बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो जस्ट सिर्फ ऐसे आपके पास से और इंसाइट मिले हमें, और हमें भी प्रेरणा मिले तप धर्म में आगे बढ़ने की, इसलिए आपके साथ ये बहुत सुंदर वार्तालाप रहा। बहुत बहुत धन्यवाद परेश जी। आप सबका धन्यवाद कि मुझे आपने ये प्लेटफॉर्म दिया कि जिसके थ्रू मैं जीन शासन की 2 बातें किसी तक आगे पहुंचा के बहुत बड़ा पुण्य कर्म बांध सकूं। बहुत ही अनुमोदना परेश भाई। आप ऐसे ही आपकी तपस्या चालू रहे। अगर जीवन में कभी बॉम्बे आना हुआ तो आपके दर्शन करने के लिए जरूर आऊंगा। नहीं, मैं बेंगलोर आ जाऊंगा आपके दर्शन करने। मेरे पास बहुत फ्रेंड्स है बेंगलोर में। आई हैव एडेड 1 more टुडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।